Hello students, welcome back to your physics class. I hope you all are fit and fine. In the previous video you have learnt about potential energy, gravitational and elastic potential energy, heat and light energy. I hope you understood all those topics. Today we will start with the next form of energy, that is electrical energy. Electrical energy is the form of energy which is created due to the existence of electric charges. मीन्स की जो एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से क्रिएट हो रही है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. चार्जेस यू ऑल नो दैट चार्जेस कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट फ्रॉम वेयर दिस चार्जेस केम, ये जो चार्जेस हैं ये बॉडीज पे कहाँ से आ रहे हैं. एज वी नो दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. दिस इज द एटम, यू कैन सी in the center. In this atom there is a nucleus which carry, this is a nucleus which carry protons and neutrons. Protons are the positively charged particles, that means they carry positive charge, and neutrons are the uncharged particles, that means they have no charge. And there is third type of particles known as electrons which revolve around the nucleus in circular orbits. Orbits means the circular path around the nucleus. So there are three type of particles in an atom known as protons, neutrons and electrons, out of which protons and electrons are the charged particles. And we can say that the charge on the bodies is due to the presence of charge on these protons and electrons. But this charge is observable only when there is excess of one type of charges on the body. That means ये charge हमें तभी feel होगा bodies पे जब एक तरह का charge ज़्यादा होगा. एक तरह का चार्ज मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है किसी बॉडी में तो उस बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उसको हम नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे. पॉजिटिव चार्ज कब ज्यादा होगा, जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और नेगेटिव चार्ज कब ज्यादा होगा, जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तब हम उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी. और अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स दोनों का जो नंबर है वो सेम होगा, देन दैट बॉडी विल बी अनचार्ज. मीन्स की व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are equal to the number of protons, then there is the net charge on the body is 0. That means we can say that the body is uncharged. So in this way the bodies become charged or uncharged. And electrons in these atoms are capable of moving from one atom to the other atom, which are responsible for इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है. दिस टर्म आई विल फर्दर एक्सप्लेन टू यू. So we can say that the electrical energy can be due to the stationary charges or due to the flowing charges. Stationary charges means the charges which are at rest, and these stationary charges means जो charges rest पे हैं, these constitute static electricity or static electrical energy. The other name of electrical energy is electricity. मीन्स कि स्टैटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक एनर्जी. जैसे कि हम अपने बालों में पेन को रब करते हैं तो और उससे हम पेपर को उठाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो पेपर है उसके साथ क्या है, कॉन्टैक्ट में आ जाता है, उसके साथ उठ जाता है इस तरह से. इसका मतलब ये है कि जब हम अपने बालों में पेन को रब कर रहे हैं तो हम चार्ज डिवेल्प कर रहे हैं. तो अगर इस पे चार्ज डिवेल्प होगा तो जब हम पेपर के नजदीक इसको लेके आएंगे तो उस पे ऑपोजिट चार्ज डिवेल्प हो जाएगा. ऑपोजिट चार्ज मतलब कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हुआ है तो पेपर पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से पेपर इसके साथ चला जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन चार्ज टू ऑब्जेक्ट्स बाय रबिंग विद ईच अदर. यू ऑफन सी दैट इन विंटर्स आर silk clothes crack, there is a cracking sound in our silk clothes. Why? Because charges get produced in the silk cloth in winters. So in this way we can say that static electricity is the electricity when two objects are rubbed with each other. Next is flowing charge, the electricity due to flowing charges. Flowing charges means that are moving, and these constitute current electricity. The word current has come from the moving charges because moving charges constitute electric current. तो जो
करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ रीजन और वायर। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं किसी रीजन में से या किसी वायर में से, तब कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है? करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज that this electrical energy is very useful, as we know that it can be used to run fan, mobile, watch, television, computer. How these can be run? When electric current is passed through these devices, then we can run these appliances, all these appliances. But how we can produce this electrical energy? Electrical energy cannot be generated directly, but it is usually generated from other forms of energy. मीन्स कि हम इसको डायरेक्टली तो नहीं बना सकते इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, पर उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम बना सकते हैं। लाइक वी कैन obtain electrical energy from mechanical energy, from chemical energy, or from geothermal energy. From other forms we can also obtain electrical energy. Mechanical energy, you all know, this is the sum of kinetic energy and potential energy. Chemical energy is the energy stored in the objects and which is used to do chemical reactions. And geothermal energy is like heat energy which is generated during the processes that are occurring below the surface of earth, that is known as geothermal energy. So to obtain electrical energy from mechanical energy we use generator, and by using batteries we can generate electrical energy from chemical energy. And to convert geothermal energy into electrical energy, there are geothermal power plants that are obtained at various places. So from these we can generate electrical energy. So this is all about the uses of electrical energy and what is electrical energy. I hope you understood this topic. You understand this topic. Next is sound energy. Sound energy is the other form of energy which is produced by the vibration of particles present in the objects. Means कि जब किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो जिस तरह जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। वाइब्रेशंस मींस टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे इस तरह से जब पार्टिकल्स मूव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। और वी कैन से दैट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जो हमारे कानों में हियरिंग की फीलिंग, हियरिंग की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम बोल सकते हैं साउंड एनर्जी। अब हमें पता ही है कि जैसे साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, बाय हिटिंग, रबिंग से या हिटिंग से या फिर प्लकिंग करके हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वी कैन प्रोड्यूस साउंड बाय रबिंग, हिटिंग और प्लकिंग द ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज ट्यूनिंग फोर्क। दिस इज अ ट्यूनिंग फोर्क एंड दीज आर दी टू प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ये जो आर्म्स होती हैं इसकी, इनको हम बोलते हैं प्रोंग्स। दीज आर द प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। जब हम इस ट्यूनिंग फोर्क को हिट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट या रबर पैड के अगेंस्ट तो इसकी जो ये प्रोंग्स हैं इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट करती हैं, और जब हम इसको अपने कान के नजदीक लेके आते हैं तो ये जो वाइब्रेशंस है इनका जो हमें साउंड सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको हिट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो ये साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय रबिंग, बाय हिटिंग और बाय प्लकिंग द ऑब्जेक्ट्स। बट नाउ द थिंग इज दैट हाउ वी कैन हियर द साउंड। ये जो हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड है या फिर हम कैसे सुन सकते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में। ब्रीफ में हमारे पास है कि किस तरह से हमें जो साउंड है वो सुनाई देता है। तो अगर हम मेडिकल टर्म में देखें तो जब साउंड प्रोड्यूस होता है देन फर्स्टली इट रीचेज आवर आउटर ईयर्स, then these vibrations reach the eardrum. Eardrum is the inner part of the ear which is present in the middle ear. Then the eardrum will also start vibrating and these vibrations are then carried to the brain. ये जो vibrations है फिर आगे brain को send कर दी जाती हैं and then the brain interprets these vibrations as signals. signals में इनको convert कर देता है vibrations को और उसके बाद में हमें क्या है ये sound सुनाई देता है। Then we can hear the sound. So in this way we hear the sound
And there is one more thing that more the strength of vibrations, the louder the sound. जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वाइब्रेशंस की, मतलब जितनी ज्यादा जोर से वाइब्रेशन होगी उतना ही ज्यादा जो साउंड है वो लाउड होगा. नेक्स्ट इज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल. साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए. जैसे कि हम बोल सकते हैं, हम एक दूसरे को सुन सकते हैं. क्यों हम सुन सकते हैं एक दूसरे को? क्योंकि हमारे बीच एक मीडियम प्रेजेंट है. कौन सा मीडियम है? एयर. तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए. अगर एयर हमारे बीच ना हो तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते. सो इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम अनलाइक लाइट वेव्स. जैसे कि लाइट है वो ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम के थ्रू, बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम आपको पता ही है, दिस इज द स्पेस वेयर देर इज नो मटीरियल मीडियम. नेक्स्ट इज साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. वेव्स क्यों कह रहे हैं हम साउंड को? क्योंकि वेव भी क्या एक तरह की एनर्जी ही है. तो साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उनको हम वेव्स बोल सकते हैं. तो ये जो साउंड वेव्स हैं, दिस कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स एंड गैसेस. बट द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में क्यों मैक्सिमम होती है? बिकॉज इन सॉलिड्स वी नो दैट एटम्स और पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, और उनमें बहुत ही कम स्पेसेस होती हैं. यहाँ पर तो चलो आपको स्पेस दिख रही है, बट इनमें स्पेसेस बहुत ही कम होती हैं, जिसकी वजह से अगर एक पार्टिकल अगर वाइब्रेट करता है तो वो जो वाइब्रेशंस है वो नेबरिंग एटम को सेंड हो जाती हैं बहुत ही जल्दी से. इसी तरह से इससे नेक्स्ट वाला पार्टिकल भी क्या है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा. तो इसी तरह से बहुत ही जल्दी जो वाइब्रेशंस है वन बाय वन नेक्स्ट टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स पास होती रहेंगी, जिसकी वजह से साउंड क्या है, साउंड की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी. बट अगर हम लिक्विड्स में देखें और गैसेस में, लिक्विड्स में क्या है, स्पेसेस होती हैं थोड़ी सी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. इनमें जो स्पेसेस होती हैं वो ज्यादा होती है, और गैसेस में तो इनसे भी बहुत ज्यादा होती हैं स्पेसेस. मीन्स की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर प्लेस्ड वेरी फार अपार्ट, वो बहुत ही दूर दूर होते हैं. तो इसकी वजह से अगर एक पार्टिकल के पास एनर्जी है तो वो एनर्जी दूसरे पार्टिकल को थोड़े टाइम बाद ट्रांसफॉर्म होगी, जिसकी वजह से वो जो साउंड है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और गैसेस में उससे भी ज्यादा कम हो जाएगी. तो इन दिस वे वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट साउंड एनर्जी. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी. Magnetic word has come from magnet. Magnet, you all know that this is the material that can attract the objects like iron, cobalt and nickel. Iron, cobalt and nickel are also known as magnetic material. इनको हम magnetic material भी बोल सकते हैं, magnetic materials. Before going to magnetic energy, before proceeding with magnetic energy, we will first see that what is magnetic field. Here is the term magnetic field. It is the space around a magnet in which we can feel the presence of this magnet by bringing another magnet or magnetic material. ये क्या है? स्पेस है एक मैग्नेट के आसपास, उसके अराउंड की स्पेस है, जिसके अंदर क्या है, किसी और मैग्नेट को अगर हम लेके आते हैं तो इस मैग्नेट की हम प्रेजेंस देख सकते हैं. मतलब क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट रख देते हैं और कोई और मैग्नेटिक मटेरियल या फिर मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं तो ये ऑब्वियसली ये इसको अट्रैक्ट करेगा. या फिर अगर ऑपोजिट पोलैरिटी के होंगे, आपको पता ही कि पोलैरिटी होती है, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और वो रिपेल भी कर सकते हैं एक दूसरे को. तो जैसे हम उसको नजदीक लेके आएंगे ऑब्वियसली तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा. अगर हम इसको थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे तो फिर भी अट्रैक्ट करेगा, पर उसकी अट्रैक्शन पावर थोड़ी कम हो जाएगी. और दूर लेके जाएंगे तो थोड़ी सी अट्रैक्शन उसकी कम हो जाएगी. अगर थोड़ा और दूर लेके जाएंगे तो इसकी अट्रैक्शन पावर और कम हो जाएगी, और इससे भी दूर लेके जाएंगे तो ये उसको अट्रैक्ट ही नहीं करेगा. तो इसका मतलब ये है कि इसके भी कुछ एरिया है या फिर इसका भी कुछ रीजन है, स्पेस है, जिसके अंदर अंदर ये किसी और मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है. तो उस स्पेस को जिसके अंदर अंदर इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसका जो हमने मैग्नेट रखा जिसके साथ दूसरा मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा था, तो इसका भी अपना एक रीजन है, एक स्पेस है, जिसके अंदर अंदर ये किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है. उस स्पेस को या उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. मान लीजिए ये इसी स्पेस के अंदर अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को,
दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट को, तो ये जितना ये एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड। तो यही मैंने डिफाइन किया था, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेट। प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेट मतलब जिसकी वजह से इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, by bringing another magnet or magnetic material that is known as magnetic field। अब मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, या मैग्नेटिक एनर्जी क्या है कि जब हम उस मैग्नेटिक मटेरियल को या मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आ रहे हैं तो इसमें एक तरह की एनर्जी स्टोर हो जाती है अट्रैक्शन की वजह से, रिपल्शन की वजह से। तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यू कैन फर्दर डिफाइन इट लाइक दिस, when a magnet or magnetic material is kept in the magnetic field of another magnet, then the energy is stored in the magnet and this is known as magnetic energy और magnetic potential energy। मतलब क्या है कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, या फिर उसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं। पोटेंशियल वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये उसकी पोजीशन की वजह से है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दिया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। Chemical energy is the energy which is stored in the objects, as I have already explained to you, or we can say that it is the potential or ability of a substance to undergo a chemical reaction। ये किसी substance की potential है, capability है, ability है एक chemical reaction proceed करने के लिए। तो जिस substance में ये energy होगी वही chemical reaction कर सकेगा। During chemical reactions it is transformed into other forms of energy। जब chemical reactions होती हैं तो ये जो chemical energy store होती है objects के अंदर, तो ये दूसरी forms में transform हो जाती है, दूसरी forms में convert हो जाती है। For example, battery produces electricity when chemical reactions convert stored chemical energy into electrical energy। अब बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। पर जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो ये जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान ये जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सिमिलरली जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस आपको पता है दिस इज द रिएक्शन ड्यूरिंग विच द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट। तो जो उसमें क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी क्या है, फूड जो प्लांट्स होते हैं उनको मिलती है टू ग्रो अप। सिमिलरली जैसे कि हम खाना खाते हैं, द फूड दैट वी ईट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कैसे स्टोर हो जाती है, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो डाइजेशन के दौरान सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेकअप हो जाते हैं। मतलब क्या है, ग्लूकोज वगैरह में सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सिंपल शुगर्स होती हैं उनमें ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो जो ग्लूकोज है वो क्या हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और यही जो केमिकल एनर्जी है बाद में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, विच अलाउज अस टू वॉक और टू रन, जिसकी वजह से हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि देयर इज अ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या है, केमिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक दिस that we eat the food and that food is converted into chemical energy and the chemical energy is used up for running, for walking, and into the other form that is known as mechanical energy. So this is all about chemical energy. I hope these all topics will get clear to you. So thank you.